So let's just summarize कि हमने पिछले 5 दिनों में अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर क्या सीखा. So first point was communication. How to communicate well is the core idea. हमने किस तरह से अपने स्टूडेंट्स तक अपना पैगाम पहुंचाना है, that is the main thing. Communication के दो हिस्से, one is verbal communication and the second one is non-verbal. Whenever we are doing the verbal communication, हम अपना content अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर करने का एक ही बेस्ट तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप अपना कंटेंट तैयार करके नहीं आ रहे, आप अपने फॉर्म पे कुछ बुला रहे, आप एक अच्छे टीचर नहीं. बट द सेकंड थिंग इज, जो कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. लाइक वट एवर आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट, उसके लिए मैं कितना ज़्यादा अपने जेस्चर्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी बॉडी को, अपने टोन को, अपने मूवमेंट्स को मैं यूज़ करूँ. इन तमाम चीज़ों को जो यूज़ करना है ना, दैट इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल communication. And non-verbal communication is actually the art and science of teaching. If anybody around us is weak at this one thing, वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता टीचिंग के अंदर. वो कुछ भी और कर रहे हैं, बट टीचिंग उसको नहीं करनी चाहिए. So first thing हमने कहा कि it's all about communication. Teaching is all about communication. Communicating through verbal expression and then through non-verbal expression. Moving on, हमने कहा कि attitude is everything. If our attitude is bad, our students are going to copy the same. हम यहाँ पे जो attitude के अंदर देखने जा रहे हैं, that is हम कितने patient हैं, हमने नोट भी किया हुआ है, हम कितनी learning करके आ रहे हैं, हम किन चीज़ों को priority दे रहे हैं, हम किन चीज़ों को अपने लिए अच्छा समझ रहे हैं, हम किस तरह से एक situation के अंदर deal करते हैं. So that's all about our attitude. If we have the good attitude, if we have good behavior, if we are good at what we do, हमारे students भी उसको imitate करेंगे, copy करेंगे, and then they are going to be good at that same thing as well. But अगर हमारा attitude bad है, तो हमारे students का attitude भी bad. So first of all, we need to develop our own personality, and then हम उस personality के साथ जब class में आके teach करेंगे, तो students are going to copy the same. इसके अंदर हमने 3 point agenda बाद में और भी डिस्कस किया था, जो कि हमने ये कहा था कि भाई अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई टीचर आ रहा है, तो सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर आप काम करें, दैट इज द कैरेक्टर, किरदार के ऊपर. देन हमने कहा कि दूसरी चीज़ के ऊपर आप काम करेंगे, दैट इज गुफ्तार, दैट इज कम्युनिकेशन. एंड देन द थर्ड थिंग जिसके ऊपर हमने बात की, दैट वाज आदाब, हैबिट्स. सो मूविंग ऑन, हमने कहा कि भाई हमारे पास आदाब पे भी हम आते हैं. थर्ड पॉइंट वाज एंजॉयमेंट. कि जब भी आप किसी क्लास के अंदर हैं, जब भी आप किसी क्लास के अंदर, if you are not enjoying, your students are not enjoying, it means whole class is not enjoying, means जितना प्रोसेस है सारा का सारा जीरो से मल्टीप्लाई हो जाता है. So teaching is all about enjoyment. Then हमने इस पे क्वेश्चन किया था कि क्या enjoyment गाना सुनना है, क्या enjoyment गपशप करना है, क्या enjoyment मुख्तलिफ और चीज़ें हैं. We came to the point that enjoyment is all about relaxation. Enjoyment is all about relaxation. If we are relaxed, if our students are relaxed, environment is relaxed, communication is relaxed. So, अगर if there is no relaxation, there is no enjoyment. If there is no enjoyment, there is no learning. So our focus was to deliver. Our focus was to deliver and deliver good. Deliver valuable stuff. Deliver one dot upon our students' personality. Moving on, we said that it's all about habits, small habits. तो छोटे-छोटे acts जो आप unconsciously कर लेते हैं, but they are part of your character, they are part of your life, they are part of your self. So उसको हमने कहा कि किरदार से उसको अलग कर दिया, गुफ्तार से भी अलग कर दिया. Then said कि ये छोटे-छोटे जब acts करते हैं, जब आदतन कर जाते हैं, तो उनको हम habits की category में लिया. And then we said it's all about habits. So habits are unconscious doing. Habits are unconscious doing, जो आप कर रहे हैं, आपकी आदत है, ठीक है. So we need to have good habits as well. छोटी atomic habits, and then I recommended 2 books. One was Atomic Habits and second was 7 Habits of Highly Effective People. So we need to go through these 2 books as well. And last we said कि भाई जब भी कोई बच्चा किसी भी स्कूल के अंदर आ रहा है, तो किस लिए आ रहा है? ग्रोथ के लिए. अगर स्टूडेंट यहाँ पे आके ग्रोथ हासिल नहीं कर रहा, वो गलत कर रहा है. हम उसके साथ जुल्म कर रहे हैं. वो गलत कर रहे हैं यहाँ आके, और हम उसके साथ क्या करें? हम उसको जुल्म करें. हम उसको क्या कर रहे हैं? Directly or indirectly, we will be ensuring your growth, but we are actually not doing it. And then we said कि जो growth है वो 5 dimensional growth है.
फर्स्ट डायमेंशन उसकी क्या है? फिजिकल डायमेंशन। अगर हमारा स्टूडेंट हमारे स्कूल में आके फिजिकली अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, हम उसको ये नहीं सिखाया कि तुम्हें फिजिकली कैसे ग्रो होना है, उसके पेरेंट्स को हम नहीं गाइड कर पाए, तो हम फेल हैं। We said second growth की क्या कौन सी डायमेंशन है? इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। इंटेलेक्चुअल डायमेंशन इज ऑल अबाउट लर्निंग, नॉलेज, विजडम। उसको तो हम ऑब्वियसली डील कर ही रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारी साइकोलॉजिकल डायमेंशन। We need to set that point of reference जिससे इंसान ये डिसीजन मेकिंग करेगा कि किस सिचुएशन के अंदर मैंने कैसे बिहेव करना है। If we are unable to do it, अगर हम अपने बच्चे को साइकोलॉजिकली ग्रो नहीं कर रहे तो we are actually failing। और तो कोई भी दादा ये जिम्मेदारी नहीं उठाते कि हम साइकोलॉजिकली बच्चे को ग्रूम करना है, बट वी नीड टू डू इट। इफ वी आर इंश्योरिंग कि हमने मुकम्मल तालीम देनी है, तो मुकम्मल तालीम का ज़ामिन इदारा होने के नाते हमने साइकोलॉजिकल डायमेंशन के ऊपर भी काम करना है। मूविंग ऑन, हमने कहा कि एक स्पिरिचुअल और मॉरल डायमेंशन भी है, दैट इंक्लूड्स योर एथिक्स, जिसको आप आदाब कहते हैं। अगर आपके आदाब ठीक नहीं है, अगर आपको खाना खाने की तमीज़ नहीं, आपको गुफ्तगू की तमीज़ नहीं है, आप बोल चाल में बुरे हैं, आप चल ठीक नहीं पाते, आप लोगों को इज़ा पहुंचाते हैं, तंग करते हैं, इफ़ योर बेसिक एथिक्स आर नॉट गुड, आप एथिक्स पे अमल नहीं कर रहे। आप अगर बेसिक अपने फंडामेंटल रिलीजियस इवेंट्स के ऊपर अगर आप फंडामेंटल नॉलेज भी आपका नहीं है और आप फंडामेंटल चीज़ें करने से भी कतरा रहे हैं, यानी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक बच्चा अपने वालिद का जनाजा नहीं पढ़ पाता, उसका इस इदारे में आने का कोई फ़ायदा है? ये अगर एक बच्चा अपने वालिद का जनाजा नहीं कर पाता, उसका कफन नहीं उसको दे पाता, उसको गुस्ल नहीं करवा पाता, उसको फ़ायदा है कुछ? अगर एक बेटी अपनी वालिदा को गुस्ल नहीं दे पाता, उसको कोई फ़ायदा है? No. So it's all about, when we say that we need to provide complete education, we literally mean it कि उसको हमने spiritual और moral dimension के अंदर भी ठीक करना है। And it is apart from कि कोई Christian है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, उसका सेक्ट कौन सा है, from wherever they are, from wherever they are, from whatever religion they follow, whatever behaviors they have, from whatever family background they have, they need to learn what they need and they should be। ठीक है, हमने उनको वही सिखाना जो वो सीखने के लिए आए हैं। And the last one is the emotional dimension, जिसको बहुत ज़्यादा डिनाई किया जाता है हमारे यहाँ। Emotional dimension is all about the emotions which we have। So as a teacher हमने कहा कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, हम एक ही इमोशन को सब के ऊपर बिन कर देंगे, and that is enjoyment वाला हैप्पी इमोशन, जिसके अंदर हम सब क्या हैं, खुश, so that कि हमारी कम्युनिकेशन ठीक हो। ऐसे था। और अगर हमारी क्लास किसी और इमोशन के अंदर है, समवन इज स्ट्रेस, समवन इज फियर, समवन इज अनॉयड, समवन इज एंग्री, तो हमने उसको हैप्पी इमोशन की तरफ लेके आना है और हमने स्टूडेंट्स को वो पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस देने हैं, उनके अंदर एक ऐसा लेवल साइकोलॉजिकल एंड मॉरल एंड इमोशनल पैदा करना है कि दे शुड ग्रो एंड दे शुड एक्सेल। लास्ट पोजीशन में हमने कहा कि इफ वी हैव 3 पर्सनालिटी टाइप्स और इफ वी हैव 3 साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, वन इज पेसिमिस्ट, हर चीज में थ्रेट देखता है, हर चीज में बुराई देखता है। वन इज ऑप्टिमिस्ट, हर चीज में अच्छाई देखते हैं, हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। थर्ड वन इज जैसे थे समवन इज रियलिस्ट। सो हमें अपने बच्चे को क्या बनाना है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी गो ऑन विद दिस? तो हमने डिसाइड किया कि हमने यहाँ इस इदारे में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में अपने बच्चे को क्या बनाना है, ऑप्टिमिस्ट। ऑल गुड, हम सब एक ही पेज पे हैं। सो विद दिस वी शुड कंक्लूड एंड देन लास्टली हमने फिजिकल डायमेंशन के अंदर जो 3 चीजें डिस्कस की थी वो क्या थी, फूड, स्लीप एंड एक्सरसाइज। अगर हमने अपने बच्चे की फिजिकल डायमेंशन को फिट करना है तो हमें उसको समझाना है कि स्लीपिंग पॉइंट्स क्या होंगे तुम्हारे, तुम्हें कब सोना है, कब जागना है, क्या रूटीन फॉलो करनी है। हमें इसको समझाना है कि भाई तुम खाने क्या खाओगे, तुम्हारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से तुम अच्छे से ग्रो कर सकते हो, यू शुड नॉट बी बल्की, यू शुड नॉट बी सो लेस। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या कहा, आपकी एक्सरसाइज प्लान क्या होना चाहिए। ऑल गुड, सो विद दिस हमारा 5 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन था वो कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की, तो चंद मिनटों में मैंने कोशिश की कि आपको समराइज कर दिया जाए। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम एंड फॉर योर एफर्ट्स एंड आई होप कि आप इस इदारे के बेहतरीन असातिज़ा के तौर पर आगे इंशाल्लाह पढ़ाते रहेंगे और काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।